Welcome back, students. Today I am going to discuss insertion after a given node in a doubly linked list and delete any node from a double linked list. In the previous video, we have already explained how to create a double linked list with the help of insertion function, insertion at first position, and how to delete a first node. So that video is important for you. क्योंकि पहले आप लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे. नाउ आफ्टर दैट you can delete, you can insert after a given node. Now how to create a node? So node contain three type of field. So structure will be back is a pointer, structure type of pointer. Info is a field, information field, and the next is also pointer, structure type of pointer, and the nickname is node. So memory allocation, first declare a pointer. So compiler create some byte memory location. Suppose the address is 1000 and ptr is equal to malloc size of node. So compiler creates 6 byte of memory location. Suppose the address is 5000. There are three fields: information, next, and back. Now 5000 हमने किस में स्टोर किया? ptr में. So ptr contain 5000. It means it will point to this one. ptr info is equal to 17. So here 17, and ptr next is null, and ptr back is also null. So in this way आपने नोड को क्रिएट किया. नाउ लिंक लिस्ट आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तभी इंसर्शन आफ्टर ए गिवन नोड आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. So insertion after a given node, I have already written a code. So this is a insertion after a given node. So this is the entire linked list. आप पूरी entire linked list को फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे. किसके बाद इंसर्शन करना है वो पैरामीटर प्रोवाइड करना है. सपोज इंफॉर्मेशन 7, 5, 9 एंड देन 3. किस वैल्यू के बाद आप नए नोड का इंसर्शन करेंगे और किस वैल्यू का इंसर्शन करेंगे, दैट इज थर्ड फ्री पैरामीटर. सपोज आई वांट टू इंसर्ट आफ्टर 9, थर्ड नोड के बाद मुझे इंसर्शन करना है. इट मींस इंफॉर्मेशन इज 9 एंड 3 के बीच में. सो आफ्टर इज 9. किस वैल्यू का इंसर्शन करना है? सपोज 17, दैट वन. सो देयर आर डिक्लेरेशन LOC एंड PTR. LOC को क्या रोल होगा? सर्च करना कि वेयर इज आफ्टर. सो LOC को सबसे पहले आपने अप्लाई किया फर्स्ट नोड के ऊपर, हेड के ऊपर. नाउ दिस इज योर हेड. नाउ व्हाइल LOC info is not equal to after, right now this whole thing is LOC. LOC का information is 7 and this is not equal to after is 9. So 7 is not equal to 9. Come to this loop. LOC को आगे बढ़ाया. LOC is equal to LOC next. Right now this is not LOC. LOC is this. Once again check LOC info. Right now this whole thing is LOC. LOC का info is 5 and 5 is not equal to null. Condition satisfied. Now once again LOC को forward direction में हम आगे बढ़ाएंगे. Right now LOC is here. Once again come to this loop. This whole thing is LOC. LOC information is 9. Okay, and 9 is not equal to 9. कंडीशन आपकी false हो गई, आप लूप से एग्जिट कर गए. So right now you are here. So LOC, it is used for searching the desired location. आप अपनी desired location के ऊपर आ चुके हैं, जिसके बाद आपने इंसर्शन करना है नए नोड का. Now एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है. सपोज somebody want to insert after 100, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो एट दैट मोमेंट LOC फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट लोकेशन पे जाके नल हो जाएगा एंड यू कैन एग्जिट बाय दिस वन. ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. इट मींस
आइटम डज नॉट एग्जिस्ट, आफ्टर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो एट दैट मोमेंट चेक कहीं एलओसी का वैल्यू नल तो नहीं है। अगर एलओसी का वैल्यू नल है इट मींस आफ्टर एग्जिस्ट नहीं करता। सो यू कैन राइट so that 100 is not exist in the given linked list and then go back without doing anything. Otherwise right now अभी की जो कंडीशन है LOC का वैल्यू मैच कर गया, सो LOC इज नॉट इक्वल टू नल, सो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो आप आगे चले गए। ओके, नाउ हियर यू कैन क्रिएट, आप इसमें टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, दैट इज ए नोड एस्ट्रिक्स। सो ptr इज इक्वल टू malloc साइज ऑफ नोड। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक नोड क्रिएट किया, सपोज द एड्रेस इज 5000, इट मींस ptr के पास में 5000 एड्रेस है, it will point to this one. Okay, now ptr info is equal to value. What was the value? That was 17. So ptr, this whole thing is ptr ka information is 17. Now come to the next linking part. Here ptr next is equal to loc next, क्योंकि आपको इसके और इसके बीच में इंसर्शन करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एड्रेस किसका आना चाहिए 4000, और 3000 की जगह एड्रेस होना चाहिए 5000 का, सो दैट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लिंक एस्टेब्लिश कर सकें। नाउ हियर 4000 इज रॉन्ग, 4000 की जगह पर 5000 होना चाहिए, इट मींस इट विल पॉइंट टू दिस वन, और इस जगह पर एड्रेस होना चाहिए 3000 का, सो दैट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिंक हम एस्टेब्लिश कर सकें। सो 1 2 3 and then 4, so these 4 important lines for establishing a link. So come to first line, ptr next is equal to loc next. Right now this is ptr and ptr next is this one, इसमें आप क्या डाल रहे हैं loc का next। right now this whole thing is loc and loc next is 4000, so आपने यहाँ पे क्या डाला, loc next is 4000, किस में डाला, ptr के next में, so this is ptr next, it means ये लिंक एस्टेब्लिश हो गया। ओके, नाउ कम टू दिस वन, ptr back is equal to loc, where is ptr back, ptr back is this one question mark, आप क्या वैल्यू डालते हैं loc। now loc contain the address of third node, first second and third, it means 3000। okay, this entire thing is loc, it means 3000, so right now this is 3000, so 3000 कहाँ पे जाता है ptr के बैक में, so ptr back is this one, this is 3000, so it means it will point to this area। okay, तो आपके दो लिंक एस्टेब्लिश हो गए। ओके, नाउ अब बैकवर्ड डायरेक्शन का लिंक और इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का लिंक एस्टेब्लिश करना है। नाउ कम टू हियर, loc नेक्स्ट का बैक, सो दिस इज loc, loc नेक्स्ट इज दिस, loc नेक्स्ट का बैक इज दिस वन। okay, loc next is 4000, it means I am talking about this one, and next का back it means this portion, यहाँ पर आप क्या डाल रहे हैं, this one ptr, what is the value of ptr, that is 5000, तो इस जगह पर आप डालते हैं 5000, तो आपका ये लिंक यहाँ से खत्म हो गया और एक नया लिंक एस्टेब्लिश हो गया, because 5000 is this one। ओके, सो ये लाइन भी आपका एग्जीक्यूट हो गया। नाउ कम टू दिस वन, loc next is equal to ptr, what is the value of ptr, that is 5000, 5000 आपने कहाँ पे डाला, loc के नेक्स्ट में, सो loc is this, loc next is this one, 4000 की जगह पे आप ओवरराइट कर रहे हैं, that is a 5000, सो इट मींस आपका ये लिंक यहाँ से डिलीट हो जाता है और एक नया लिंक आपका यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। सो आपका ये लिंक और ये लिंक यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। राइट नाउ यू कैन इमेजिन दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के पास एड्रेस है फोर्थ का, फोर्थ के पास एड्रेस है फिफ्थ का, फिफ्थ के बैक में है फोर्थ का,
फोर्थ के बैक में है थर्ड का। सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रॉपर लिंकिंग हो चुका है, प्रॉपर तरीके से लिंक हो चुका है दिस वन। ओके, बट व्हाट अबाउट सपोज इट वाज द लास्ट नोड, अगर ये लास्ट नोड होता तब क्या करते? सपोज somebody want to insert after 3, यहाँ पर आफ्टर का वैल्यू 9 ना होकर के कोई 3 देता, तो LOC आपने यहाँ पे अप्लाई किया होगा। LOC का इंफॉर्मेशन 7 इज नॉट इक्वल टू 3, सो LOC को आगे बढ़ाया। ओके, दिस इज 5, यहाँ से LOC का इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू आफ्टर इज राइट नाउ 3 के बात कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 3, सो LOC को आपने आगे बढ़ाया। राइट नाउ दिस इज 9 इज नॉट इक्वल टू 3, LOC आपका नेक्स्ट लोकेशन पे जाता है। यस, राइट नाउ दिस इज 3। ओके, सो कम बैक, LOC इज नॉट इक्वल टू नल, आप यहां से भी एग्जिट हो गए। नाउ फर्स्ट यू क्रिएट नोड, पहले आपने नोड क्रिएट किया होगा दिस वन, एंड द इंफॉर्मेशन the address, suppose this is 5000, PTR के पास एड्रेस कितना होगा, that is 5000, this one। PTR का इंफॉर्मेशन that is 17, suppose this is 17, PTR next is equal to LOC next, PTR next is this one and LOC next is this one, it means आप यहाँ पे नल की बात कर रहे हैं। सो नल आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कहाँ पर? PTR के नेक्स्ट में, दिस इज PTR नेक्स्ट। ओके, नाउ कम टू दिस वन, PTR बैक इज इक्वल टू LOC, PTR बैक में आप क्या डालते हैं? LOC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LOC? दैट इज 4000, सो इट मींस आपने यहाँ पे 4000 पुट किया, इट मींस आपने यहाँ पर एक पॉइंटर एस्टेब्लिश किया। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, थर्ड लाइन, LOC नेक्स्ट का बैक, राइट नाउ दिस इज LOC, LOC नेक्स्ट इज नल, अगर नल कुछ है ही नहीं तो उसका बैक क्या होगा? सो दिस इज रॉन्ग, so you can write if condition, if LOC next is not equal to null, then this statement will be executed। और अगर null है, right now this is LOC next is null, so null is not equal to null, it means condition false, तब ये block execute नहीं होगा। okay, so this is the part of if block, so at that moment आपका ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप फोर्थ इंस्ट्रक्शन के ऊपर आएंगे। नाउ हियर LOC नेक्स्ट में आपने असाइन किया PTR, नाउ व्हाट इज PTR? दैट इज 5000, और 5000 आपने LOC नेक्स्ट में दिया, इट मींस LOC नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पे आप देते हैं 5000, इट मींस इट विल पॉइंट टू दिस नोड एंड देन स्टॉप। तो आप देख सकते हैं कि इंसर्शन आपका लास्ट में हो चुका है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में लिंक एस्टेब्लिश हो गया है, और 3 के बाद में इंसर्शन हो चुका है। 7 से पहले इंसर्शन का कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि एल्गोरिथम का नाम ही है, फंक्शन का नाम है इंसर्शन आफ्टर ए गिवन नोड, तो आफ्टर का वैल्यू तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इंसर्शन है। सो दिस इज द कंप्लीट कोड। ओके, सो दीज आर वेरिएबल्स, और यहाँ पे सर्चिंग पार्ट, यहाँ पे मेमोरी को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिंक करेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि LOC नेक्स्ट लास्ट नोड तो नहीं है, अगर लास्ट नोड है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम सीधा सीधा थर्ड लाइन के ऊपर जाएंगे, दैट इज अ फोर्थ लाइन बेसिकली, दिस वन। सो दिस इज द इंसर्शन आफ्टर ए गिवन नोड। डिलीट एनी डिजायर्ड नोड, आप किसी भी नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं? सपोज दिस इज द लिंक लिस्ट एंड दिस इज सेकंड पैरामीटर कि आप किस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट नोड, दिस इज नॉट द लास्ट नोड के उसमें आप पैरामीटर सेकंड ना पास करें, क्योंकि यहाँ पे डिजायर्ड की बात आती है, आप कोई भी डिजायर्ड नोड कैसे डिलीट करेंगे यहाँ पर। सो वेरिएबल LOC नल, LOC को आपने हेड के ऊपर अप्लाई किया, राइट नाउ यू आर हियर, सपोज आई वांट टू डिलीट 15, सो x का वैल्यू कितना हो गया? दैट इज 15। ओके, सो दिस इज 15 x, राइट नाउ LOC इंफॉर्मेशन इज 11, मैच नहीं होता तो LOC फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, राइट नाउ LOC इज हियर,
ओके, दिस इज 10, सो 10 LOC इंफॉर्मेशन 10 15 से मैच नहीं होता, फिर से हम व्हाइल लूप में आएंगे एंड LOC को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे. राइट नाउ LOC is here. Now once again check, LOC information is 15 and 15 is not equal to 15, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया. ओके, सो हम यहाँ से लूप से बाहर निकल गए. ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अगर डिलीट करने को बोला, सपोज 50 को डिलीट करना है और 50 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में LOC का वैल्यू नल होगा. एंड इफ LOC इज नल इट मीन्स जो आइटम आप डिलीट करना चाहते हैं वो लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता एंड देन गो बैक. बट हमारे केस में अभी 15 है तो हम यहाँ से एग्जिट कर गए. नाउ आफ्टर दैट व्हाट, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, LOC का नेक्स्ट का बैक. राइट नाउ दिस इज LOC का नेक्स्ट इज दिस वन और बैक इज दिस वन. तो आप यहाँ पर लिखने जा रहे हैं LOC का बैक. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LOC का बैक? LOC बैक इज दिस वन, दैट इज ए 200. सपोज एड्रेस इज 200. कहाँ पे डाला? LOC के नेक्स्ट के बैक में, यानी LOC का नेक्स्ट उसका बैक यहाँ पे आपने इसको काट के क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज 200. सो ये लिंक यहाँ से खत्म हो गया और आपका एक नया लिंक यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया जहाँ पे 200 एड्रेस है, दिस वन. नाउ कम टू दिस वन, LOC के बैक का नेक्स्ट. राइट नाउ दिस इज LOC का बैक इज दिस वन, दिस, और LOC के बैक का नेक्स्ट इज दिस वन. इसमें आप कुछ डालना चाहेंगे, कौन सा एड्रेस डालना चाहेंगे, क्योंकि ये नोड तो डिलीट होने वाला है तो डेफिनेटली यहाँ पर 300 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 400 होना चाहिए. सो 400 किसके पास है? LOC के नेक्स्ट के पास में. सो दिस इज LOC का नेक्स्ट, इट मीन्स 400 आप कहाँ पे कॉपी कर रहे हैं? LOC के बैक के नेक्स्ट में. सो LOC का बैक इज दिस एंड नेक्स्ट इज दिस. तो 300 को यहाँ से आपने डिलीट किया और 400 को कॉपी किया, तो यहाँ पे ये लिंक आपका खत्म होता है और एक नया लिंक आपका यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है, दिस वन. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये दो लिंक खत्म होते हैं. राइट नाउ दिस LOC, इसको आपको रिटर्न करना होगा हीप में विद द हेल्प ऑफ फ्री फंक्शन. सो LOC के पास एड्रेस कितना है? दैट इज 300. सो यू प्रोवाइड पैरामीटर LOC दैट इज 300, फ्री 300. सो फ्री फंक्शन क्या करेगा? मेमोरी को डीएलोकेट करेगा और दोबारा हीप में दे देगा. ओके, नाउ एंड ऑफ दिस फंक्शन. सो इस तरीके से ये डिजायर्ड नोड आपका डिलीट हो गया. बट दिस इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. सपोज अगर ये लास्ट नोड को डिलीट करने की बात होती तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा अपने कोड में. नाउ यहाँ पे आप लगा सकते हैं, सपोज आप इसके कौन से नोड को डिलीट करते हैं? लास्ट नोड को. तो LOC का नेक्स्ट तो कुछ होगा ही नहीं. सो इफ LOC next is not equal to null, then ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. सपोज somebody want to delete the 7, तो LOC को आप कैसे करेंगे? LOC को आपने हेड के ऊपर असाइन किया. नाउ दिस इज 11 7 के साथ मैच नहीं होता, तो यहाँ से हम LOC को बढ़ाएंगे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर. नाउ दिस इज 10 इज नॉट इक्वल टू 7, LOC को आपने आगे बढ़ाया. दिस इज 15 इज नॉट इक्वल टू 7, LOC को आपने आगे बढ़ाया. ओके, नाउ आई वांट टू डिलीट दिस वन. तो नाउ कम टू हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज LOC. LOC का नेक्स्ट इज नल, तो आपका ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट ये लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा. सो LOC इज दिस, LOC का बैक इज दिस और LOC के बैक का नेक्स्ट इज दिस. यहाँ पर आप एड्रेस किसका डाल दें? LOC नेक्स्ट. राइट नाउ LOC नेक्स्ट इज नल, इट मीन्स आप नल को कॉपी कर रहे हैं LOC के बैक के नेक्स्ट में. सो LOC के बैक के नेक्स्ट में 400 आपने डिलीट किया, इसका मतलब ये लिंक यहाँ से डिलीट हो जाता है और आपने नल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया. दिस इज. Now after that you can free
LOC। अब आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डी एलोकेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका लास्ट नोड डिलीट हो गया। नाउ दिस इज फर्स्ट नोड, सेकंड नोड एंड थर्ड नोड। थर्ड नोड के लास्ट में नल है और बाकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की लिंक ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। सो दिस इज केस नंबर 1 जो कि आपने ये इफ के थ्रू एग्जीक्यूट किया। नाउ सपोज somebody want to delete first node, अगर केस नंबर 2 बात करें, this one, if first node I want to delete, now at that moment आपको यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा, if LOC का बैक is not equal to null, then this one. ओके, सपोज किसी ने बोला कि मुझे 11 यहाँ पे डिलीट करना है। आपने फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड किया, आई वांट टू डिलीट फर्स्ट, दैट इज 11। सो LOC को जब आपने हेड के ऊपर लगाया था हेयर, सो LOC का इंफॉर्मेशन दैट इज 11 एग्जैक्ट 11 से मैच होता है और आगे नहीं बढ़ेगा। LOC नल भी नहीं है, सो यू आर हेयर। LOC का नेक्स्ट नल नहीं है, सो पहला लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा। इट मींस LOC के नेक्स्ट के बैक में दिस इज LOC और LOC का नेक्स्ट इज दिस एंड बैक इज दिस। यहाँ पे आप क्या डालते हैं, LOC का बैक, एंड LOC का बैक इज नल। सो हेयर LOC का बैक इज नल। ओके, सो LOC का नेक्स्ट का बैक, इट मींस 100 की जगह पे आप लिखते हैं दैट इज नल, क्योंकि LOC का बैक जो है दैट इज नल, और ये नल आपने कहाँ पे कॉपी किया, LOC के नेक्स्ट के बैक में। LOC इज दिस, LOC का नेक्स्ट इज दिस और बैक इज दिस, यहाँ पे नल आपने कॉपी किया। इट मींस आपका ये लिंक यहाँ से ब्रेक हो गया, दिस वन। ओके, नाउ कम टू हेयर। अब आपने लिखा इफ LOC बैक इज नॉट इक्वल टू नल, राइट नाउ LOC बैक इज नल, सो नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, इट मींस ये आपका लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अब आपको ये नोड डिलीट करना है, सो हेड आपका ये नोड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कोड और चेंज करना पड़ेगा। इट मींस एल्स एट दैट मोमेंट, इट मींस यू आर गोइंग टू डिलीट फर्स्ट नोड, तो आप अपने हेड को एडवांस कर दीजिएगा। इट मींस हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। सो हेड जो है इस पोजीशन से बढ़कर के नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर असाइन हो जाएगा हेयर। नाउ यू कैन फ्री दिस मेमोरी, कोड में आप इसको फ्री कर सकते हैं। इट मींस 100, तो फ्री LOC राइट नाउ दिस वन। सो ये मेमोरी आपकी डी एलोकेट हो जाएगी। कहां पर डी एलोकेट हो जाएगी, हीप में दोबारा चली जाएगी, सो दैट सेकंड एप्लीकेशन इसको यूज कर सके। सो राइट नाउ यू आर हियर, दिस इज योर फर्स्ट नोड। यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। दिस इज नल एंड दिस इज आल्सो नल, सो दिस इज कंप्लीट डबल लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो द कोड आपका जो कंप्लीट बनता है दैट इज दिस वन। ओके, सो बाकी सब कुछ सेम था, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको और लगाना पड़ेंगे। दिस इज द if LOC next is not equal to null, then do this one. If LOC back is not equal to null, then do this one. Otherwise do this one. It means this is the first node you are going to delete, और उस केस में आपको क्या करना होगा, हेड को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। ओके, सो आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।